service. One portal which is available for the customers, that is called the CSM, Customer Service Management. Okay, I'll tell you the difference here. If I say that who is my end user, Ritesh, who is my end user? Hello. Yes, Ritesh, who is my end user? End user who is using services Okay, means raising request or मतलब raising service request or incident. So he is a end user for us. okay. Then who is the customer? Customer end user can be our internal also for us, Mhm. but for customer we have specific things which they can see. So if they are ordering something new services from Mhm. our company, so Okay. it is a customer end user for us. Okay. So in short, can we say this thing ki if X company is providing services to the Y company, then Y company is the end user. But if that same service has been used by Y end users, then it become a customer for me. Something like this we can say. So Uh, so okay. mm, If I say that TCS is providing services to o- Vodafone, okay, okay. on the service now. So for the TCS, Vodafone is the end users, right? Hmm. But Vodafone has their own customer in the market. Yes. If that customer is using my ServiceNow portal, means these are the customers. They are not the end user. They are consuming it, Consuming. Yeah, correct. right? End user always use the service. Consumer always consume the service, Hmm. right? So when I say I in the service now, I have a portal called service portal. It means this portal is used by the end user. Okay. But in the service now, one we have one other module as well, that is called the CSM, Customer Service Management. It means when the customer is using the when customer is consuming that services is the CSM part. So for that we have a separate portal. Okay. So now going forward, we have to be remember that if I say end user, I'm talking about the service portal. If I'm talking about the customer, I'm talking about the CSM. If I'm talking about the employee, specifically, I'm using the HR portal. Okay, because ServiceNow has the HRSG as well, right? So now in this portal, I'm talking for the end user perspective. So this is the portal where my and my service person can order something, can order any laptop, can order any desktop, can order any phone. Like normal example, suppose Shilpi join a company Y. Okay, Shilpi manager told to Shilpi that okay, Shilpi, please go and raise a request for the laptop, raise a request for the one iPhone, raise a request one for the router, sorry, one for the dongle, and raise a request one for the bag. Okay. Then what Shilpi will do? Shilpi will go into this portal and log a request one by one by one by one, right? So it means this portal is available for the end user. So as you told, end user can be internal or external. External is basically we are taking external very less, but internal customers are the users for me. Okay. Now the thing is that if I join a company, okay, suppose sometime what happened that in our projects, okay, if someone join my project, that is a default that hey, you will get a laptop. You are at any level, you will definitely get a laptop. This is the work of way of working in some of the projects. That is support project. Simple. Either you join as a fresher, as a consultant, or either you join as a director or senior director, you will get a laptop. You have to be taken. You have to raise a request. That request will go for the approval. Okay. So now in next half an hour to 45 minutes, we will discuss the one major component of ServiceNow, that is called the request management, service request management. Okay. आज possibly technical ज़्यादा नहीं हो पाएगा हमारा, but theoretical part we need to be clarified, and we'll see that how this thing has been defined in the system. Okay. So we are going to be discuss about the service. Uh, my goodness, my system is totally blank today. So
we are going to discuss about the service request management, where I am raising a request for something to be issued to me. Okay. Service request management. And from the interview perspective, this is an important point. Okay. Means that if you are supporting any customer, if you're supporting any company and they say that I need a portal, it means they need a service request on the portal. Okay. So service request includes, like, I can say your laptop, your desktop, phone, mobiles, SharePoint access, email access, all these things are there. Okay. All these things will be there. Now the thing is that if Shilpi is raising a request for a laptop, definitely it should be get approved. Only then it will be issued to the Shilpi. So how this ServiceNow works specifically in this area? So ServiceNow say that in the request management, I have three major components. One is called the REQ, that is called the request number. Then second is called the RITM, that is called the request item number. And then last, एक्चुअली में जो टीम काम करेगी वो इसके ऊपर काम करती है, एससी टास्क के ऊपर, राइट? If you remember in the last session, I told you need to be go through the three major terms: record producer, order guide, and catalog item. बताइए क्या क्या है? Rena, what is the meaning of the catalog item? Catalog item where a customer can raise a request for what they need actually. Catalog item is the item. Example. For example, like if customer wants the new virtual server, okay. So this is the request for the customer is requesting for the new virtual server, and this is the request. In that, the RITM will be raised. That is, request item will be raised on that on behalf of that request. Okay, right. Then what is record producer? No idea about that. Record producer is you can create one record. So using that you can create the multiple task. I think it's a record producer. नहीं सर, आप उल्टा बोल रहे हैं. अच्छा मिक्स कर रहा हूँ. Right. So record producer says it's a little technical term, and from the interview perspective, you should understand these terms. People generally ask, okay, what is the record producer? What is catalog item? What is order guide? Okay. A record producer says that when you are be raising any stuff on the portal and one record at a time will be generated, it's called the record producer. Okay, let's see the definition in the portal as well, in the website as well. Okay, then what is the catalog item? Basically, if I say the item now, it means that I'm talking about the request item. So if I want to order something, it's a laptop, it's a I can say what I can say, desktop, all these things. Record. Order guide. Okay. एग्जाम्पल देते हैं इसका. Amazon की वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करते हैं, right? Then if you are ordering some mobile phone, ordering some shirt, top, skirt, jeans, these are the items, these are the catalog items. But when you are, because this catalog, why it's the catalog item? Because you are ordering something, it will go in the background, it will search, is that particular item in the stock or not? So multiple entries are creating in the background. Okay. But what is the record producer? When you say, hey, I didn't get my refund, I'm raising any issue, that is called the record producer. Okay, let's see what the definition mentioned. And what is the order guide? When you put multiple things in a single place. अब हम क्या करते हैं in Amazon, in Flipkart, everywhere,
we have the option of the cart, right? Add to the cart, add to the cart, add to the cart, and click OK. Checkout and OK. It means order guide means I'm putting everything in a one bundle and ordering in a one go. So उस केस में क्या होगा, मान लीजिए अब रैना शॉपिंग कर रही है Amazon से. रैना ने कुछ एक मोबाइल फोन कार्ट में डाला, कुछ किचन का सामान कार्ट में डाला, कुछ इसका फैशन वियर्स का कुछ डाला, कुछ ज्वेलरी का सामान डाला कार्ट में. एट द लास्ट चेकआउट एंड ओके. तो क्या होगा, रैना के पास 4 अलग ऑर्डर नंबर आएंगे, राइट? 4 अलग डिलीवरी डेट्स आएंगी, 4 अलग पेमेंट्स का, सॉरी, 4 अलग ईमेल आएंगे अलग ऑर्डर का. सो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर गाइड. ओके, सो इफ आई गो थ्रू दिस कम्युनिटी पार्ट, कैटलॉग आइटम से क्रिएट एंड एडिट कैटलॉग आइटम द एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल टू ऑर्डर फ्रॉम अ कैटलॉग. आप कैटलॉग मतलब कि आप Amazon पे वही चीज ऑर्डर कर सकते हो जो आपको दी गई है ऑर्डर करने के लिए. यू कैन नॉट ऑर्डर स्पेसशिप क्योंकि वो Amazon की साइट पे है ही नहीं, राइट? Record producer says enable record to create directly from the service catalog. For example, all customer is an incident. मतलब जहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जनरेट होगा ना, that is called the record producers. Order guide says create and edit the standard groups of related items, allowing end user to easily order these items in a one request. Simple. Add to cart में करो, order करो, काम खत्म. That is called the order guide forming. Okay. So these are the important terms from the interview perspective I'm talking here. Okay. इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी झोल किया ना बताने में, इंटरव्यू समझ आएगा, इसको नहीं पता. These are the very standard terms and specifically used. So if you read one more line here, the main difference between catalog item and an order guide is that what happens after you submit. A catalog item is work with cart where you can add multiple items and then check out. On a backend, it creates a request item and possibly approvals as well. We will see कि वो कैसे काम करता है. And record producer is the one order one at a time and create one record in the background. ठीक. So normal in short example क्या हो गया, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर वो है जो टेबल में जाके सिर्फ एक ही रिकॉर्ड क्रिएट करता है एक टाइम पे. बट कैटलॉग आइटम क्या है, जो जाके मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करती है. जैसे कोई लैपटॉप का ऑर्डर करेंगे, आपके पास एक RET नंबर है, एक RET नंबर आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो 2 रिकॉर्ड एक साथ जनरेट हो, दैट्स कॉल्ड द कैटलॉग आइटम. ओके. और उसके बाद यहाँ पर होता है टास्क. अब हम क्या करते हैं, अतुल एक बार रिकॉर्ड प्रोसीजर को रियल टाइम एग्जांपल में बताना, जैसे सर्विस नाउ में किसी में. अच्छा. Okay. I'll not take the company's name now. Actual company names we will not discuss here because it's a recorded session. Suppose Rana work in the company X. Okay. Company X is internal portal. Definitely हर कंपनी का अपना पोर्टल रहता है, राइट? XYZ कंपनी का सबका पोर्टल रहता है. For my company, it's called the issue tracker, or maybe I can say the log tracker kind of stuff. हर कंपनी, right? So आप क्या करते हो, आपकी मान लीजिए लैपटॉप नहीं चल रहा, आप उस पोर्टल पे जाएंगे, वहां लिखा होगा रेज एन इशू या रेज एन इंसिडेंट, राइट? आप जाके क्या करेंगे, उस पर लिखेंगे हे माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, क्लिक सबमिट. तो वो क्लिक सबमिट किया, दैट इज द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर. मतलब कि जब आप पोर्टल से यहाँ पे जाते हैं, देखो, ठीक है, गेट हेल्प देखो, ये जब आप पोर्टल पे जाकर एक इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, देन इट इज बिकम द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर. क्योंकि वो बैकएंड में एक ही एंट्री जनरेट करेगा, 2 एंट्री कभी 2 रिकॉर्ड जनरेट नहीं करेगा. लाइक दिस, पासवर्ड चेंज करना है, इंसिडेंट क्रिएट करना है. दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल. ओके, ठीक है. सो दिस विल क्रिएट ओनली वन रिकॉर्ड इन द बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डालोगे भाई 50 लोगों की इशू है, 50 लोगों के लिए नहीं टिकट होगा, टिकट एक ही इशू क्रिएट होगा, उसमें नाम जो आप डालोगे वो 50 लोगों का नाम डाल देगा. ओके. तो ये एग्जांपल है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर का. एंड दीज आर द बेसिक टर्म फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. ठीक है. बट हमारा मुद्दा क्या है, चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं पूरा वर्क फ्लो एक बार. Rana joined company X, okay, and her manager asked that okay, you can go and create a request for the laptop. So I'll go here. Rana will log into the this portal. Oops, I shouldn't believe, yeah, I'm canceling it. Okay. Rana will log into the X portal. Okay. Rana will go and search for the
लैपटॉप का रिक्वेस्ट, रैना यहाँ गई, समथिंग रिक्वेस्ट पे गई, ओके जी कोई बात नहीं, मुझे बोला तो करना है, क्लिक ऑन द हार्डवेयर, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्योंकि फ्रेशर है तो उसको डेस्कटॉप भी मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, बट रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। रैना क्लिक ऑन दैट, ओके एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप, मतलब वो भी सस्ता नहीं है लेना रैना ने, देखो उसका कॉस्टिंग कितना है, 1,37,543 रुपीज एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप चाहिए। ओके रैना ने क्लिक किया इसके ऊपर, नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस, फिर इसको हम अपना पेपर पे डिजाइन करके देखेंगे, ठीक है। रैना ने देखा अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई बढ़िया सा इंटेल का प्रोसेसर, मेमोरी कितनी चाहिए, लेट्स क्लिक हियर, 2 GB चाहिए, और अगर 2 GB लेना है तो आपको 7,330 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। राना ने बोला कोई बात नहीं भाई, कंपनी अपनी चलेगा। हार्ड ड्राइव कितना चाहिए, राइट नाउ सी फॉर द हार्ड ड्राइव यू हैव टू पे 5,498 रुपीज। आप देखिए यू आर ऑर्डरिंग अ फोन in the Amazon website or in the Amazon app and they're asking if you want to buy a back cover 100 rupees extra लगेंगे, if you want to buy any extra light 100 rupees extra लगेंगे, if you want to buy any extra accessories इतने पैसे वापस लगेंगे, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, उसने बोला मुझे तो रेडिट चाहिए, मैं तो छोटे मोटे पे काम नहीं करती। एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट, आई नीड एक VLC प्लेयर होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए, एज ऑल फॉर द ऑथेंटिकेशन पार्ट, ओके। इफ यू वांट टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट कि भाई मेरे को मैनेजर ने बोला सब ऑर्डर करने के लिए, देन यू कैन अटैच द डॉक्यूमेंट। बट वन थिंग हियर, ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, ये CPU स्पीड, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, क्या ये चीजें, क्या ये एट्रीब्यूट्स हर एक कैटलॉग आइटम के लिए एप्लीकेबल होंगे? अगर कल आप फोन ऑर्डर करोगे तो उस पर तो CPU नहीं होता, उस पर मेमोरी भी नहीं होती, हाँ मेमोरी होता है, आई एग्री मेमोरी होता है, हार्ड ड्राइव नहीं होता उसमें, राइट। So will these attributes available for the other catalog item or not? अरे हाँ ना बोलो। Yes, yes. अरे कैसे यस? कल अगर मैं लैपटॉप ऑर्डर करूंगा तो मुझे लैपटॉप ऑर्डर करूंगा, या मैं मान लीजिए कल मोबाइल फोन ऑर्डर करूंगा तो उस पर मैं ये थोड़ा ना बताऊंगा कि मुझे कितना हार्ड ड्राइव चाहिए, वो तो फिक्स ही होता है अगर एक ही मॉडल दे रहा है। सो व्हाट वी कॉल दीज थिंग्स, these memory, CPU speed, these called the variables, okay? Okay, variables. Okay. Variables हैं ये, क्योंकि ये concepts अभी क्लियर होंगे तो Fixed है. हम yes Yeah. फिक्स नहीं है, these are variables, these are the changing part. I am giving the flexibility to the user कि भाई तुझे बता 2 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, 15 GB चाहिए, तू जो बोलेगा मैं दे दूंगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि ये वेरिएबल आ कहाँ से रहे हैं इस फॉर्म के ऊपर। देखो सर्विस ना हो या Amazon हो या फ्लिपकार्ट हो या डोमिनोज हो, किसी भी सिस्टम को नहीं पता कि मुझे क्या करना है। These are the human beings who configure the system in such a manner, right? जब अगर रैना ने या रितेश ने कोई अपना फैशन वियर कुछ परचेज करना है तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है, चाहिए एक्सेल चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या फोन के ऊपर भी ऑप्शन आता है आपको एल चाहिए, मीडियम चाहिए, एक्सेल चाहिए? नो। सो दीज आर द वेरिएबल्स कि भाई फोन के लिए वेरिएबल है। फोन के लिए वेरिएबल क्या होगा, आपको रेड कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, वेरिएबल है। आपको 6 GB चाहिए, 5 GB चाहिए, 8 GB चाहिए। तो हर कैटलॉग आइटम पे आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज अब मैं क्या करूंगा, रैना ने बोला यस इट्स गुड फॉर मी, नाउ आई एम ऑर्डरिंग। सी आपका जो बेस प्राइस था 1,37,000 था, लेकिन हमने अपनी चीजें बढ़ाई तो पैसे बढ़ गए हमारे, तो ज्यादा हो गया, या राइट। क्योंकि हमें पता है अगर 1 GB लोगे तो इतना कम हो जाएगा, कर देते हैं कम हो गया वो पैसे, क्योंकि 1 GB इन दोनों इसके साथ काम नहीं करता, 1 GB सीरीज के साथ काम करता है। मैंने बोला मुझे ये दे दो, देखो इसका कॉस्टिंग कितना था 23,000, 20 और 23 ऐड हो जाएगा इसमें भी, हो गया। मैंने बोला भाई अब ये है तो मुझे 2 GB दे दो, और पैसे ऐड हो गए। हार्ड ड्राइव भी बढ़िया दे दो, पहले इसका था हार्ड ड्राइव का 5498, ये भी दे दो। शुगर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का पैसा नहीं मांगा, नहीं तो बोलते भाई ये वाला तो इसके भी पैसे लगेंगे, राइट। तो नाउ व्हाट विल डू, ऑर्डर इट।
रैना ने ऑर्डर कर दिया, everyone who joined the organization follow the same process, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे फोन हो। अब वो रैना के पास एक्सेस नहीं था, तो ये काम रैना के मैनेजर ने रैना के बिहाफ पे किया। तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एनीवन बिहाफ एज वेल। ओके, आई से आई एम रिक्वेस्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एलिन मॉर्टन। वो डिलीवरी इंफॉर्मेशन चाहिए अलग से, यस इटली रोम, ओके वहीं पर डिलीवर करके देना। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, राइज इट एंड वियर मास्क एंड ऑप्शन। अब जब वो भी तो पूछते ना Amazon, डू यू वांट द पैकिंग और नॉट, पैकिंग और नॉट, एनी मैसेज आपको भेजना कि नहीं भेजना उसके ऊपर, राइट? Okay. And click on the checkout here. Clicking on the checkout, it means I'm submitting this request. बस इतना फर्क है कि यहाँ पे पैसे आप दे दोगे, वो आपके प्रोजेक्ट से कट जाएंगे। Company देगी, right? एग्जैक्टली राइट। लेकिन Amazon में ऐसा नहीं होता ना, आप ऑर्डर करोगे तो आपको देने पड़ेंगे, हस्बैंड के पैसे देंगे। Obviously. रितेश के केस में ऐसा नहीं होगा, मैडम ऑर्डर करे चाहे बच्चा ऑर्डर करे, पैसे रितेश को देने पड़ेंगे। राइट। सो देखो अब क्या हुआ, इसका एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया, राइट। अब देखो, अब मैं इसको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, इसके पीछे हुआ क्या, व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज अ कैटलॉग आइटम फॉर्मेट। मैं यहाँ जाता हूँ तो ग्लोबल सर्च में सर्च करता है, ठीक। सर्च में सर्च होके आ गया मेरे पास, ठीक है। यही था, इसने रिक्वेस्ट किया, इसके लिए रिक्वेस्ट किया, पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है, और आपका जो इंस्ट्रक्शन था वो आ गया, स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गया, हमने ये लिखा था, राइट। अब देखो व्हाई इट्स कॉल्ड द कैटलॉग आइटम, क्योंकि इसने एक साथ दो से तीन रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया। नंबर 1 रिकॉर्ड जनरेट किया, आइटम जनरेट किया, और जनरेट किया। तो हमने ऐसा कोड लिखा है पीछे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय $1000 से ऊपर का कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसका अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अब क्या, जब तक ये ग्रुप अप्रूवल नहीं देगा, सेम जैसे आपका डीएम है या उस कंपनी होंगे या सुपरवाइजर होंगे या पीएमओ होगा, कि भाई वो हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या रहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्डर कर रहा है तो उसका मैनेजर शुड अप्रूव दैट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आई एम अप्रूविंग दिस रिक्वेस्ट नाउ। और अच्छा रुको, इस क्या क्लिक किया मैंने, ठीक है कुछ नहीं, ठीक है। नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। हमने क्या बोला था, आरई को जनरेट हो गया हमारा, Right. आरएनबी जनरेट, RTMP हो गया। अब देखते हैं कि टास्क जनरेट Task हुआ नहीं होगा जब तक वो अप्रूव नहीं होगा, right? एग्जैक्टली राइट। ये मुझे बोला था रितेश ने कि नेक्स्ट टाइम रैना को बोलना प्लीज अटेंड करें, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें आ गई, ये देखो ये आ गए ना वेरिएबल्स मेरे, राइट। पूरी चीजें, ये सब जो हमने लिखा वहां पे सब आ गया, राइट। टास्क क्यों नहीं जनरेट हुए, क्योंकि जब तक रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगा, कौन सी टीम को काम करना है पता नहीं है मुझे, और कोई टीम क्यों काम करे जब तक अप्रूवल नहीं हुआ, जब तक अप्रूवल नहीं होगा, राइट। रैना के मैनेजर ने बोला भाई आपको जो ऑर्डर करना है वो एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप नहीं करना था, आपको फ्रेशर डेस्कटॉप करना था, आपने कर दिया, तो कैंसिल हो जाएगी रिक्वेस्ट। कैंसिल नहीं, he need to be rejected, then it will be cancelled, Rejected, right? right? So reject it from in the let's approve it first. So why approve it first? Because it goes to the manager, na, who just need to check is it right or wrong. Yes. So depends on her. Yes. अभी क्या है, सर्विस नाउ का जो आउट ऑफ द बॉक्स है, what they mention here is that anyone who is ordering the request, it's cost more than $1000, so इसी ग्रुप के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, they put some client script something and उसी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा वो हमेशा, ठीक है। बट वी कैन कॉन्फ़िगर इट, वो हम कल देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो, Okay. तो नाउ लेट्स अप्रूव ऑन द बिहाफ, बिकॉज आई लॉग इन एज एडमिन सो आई कैन अप्रूव इट।
सो क्या हुआ, रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया। R18 पे चलते हैं, ये भी अप्रूव हो गया क्योंकि उसी बंदे का नाम था, अप्रूव हो गया। एंड RITM, Right. अब होगा क्या, RITM से क्या होगा, अब टास्क जनरेट हो जाएंगे। हो गया टास्क, पहला टास्क देखो। एक अब इसमें भी खास बात है, सारे टास्क ऐसा जनरेट नहीं हुए। पहले क्या है भाई, जाके देखो प्रोक्यूरमेंट में जाके देखो ये Procurement हो गया, right. डेस्कटॉप हमारे पास है भी कि नहीं है। उसने बोला चलो देखते हैं, यहाँ गए, ठीक है, उसने बोला अच्छा ठीक है सब कुछ है, एंड ही मार्क एज अ क्लोज। अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर ना क्लोज, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और स्किप, इसके ऊपर पूरा खेल चलता है REQ में, RITM में। अगर गलती से आपने क्लोज इनकम्प्लीट कर दिया, गलती से भी कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसलिए हम कभी भी क्लोज इनकम्प्लीट नहीं करते जब तक हमारे पास पूरा प्रूफ ना हो या कोई हमें रिटर्न में ना दे। इफ यू स्किप इट देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल कि भाई ठीक है, प्रॉफिट मुझे चेक करने की जरूरत है, प्रोक्यूरमेंट में पड़ा है, ठीक है। सो आई एम पुटिंग एज अ क्लोज कंप्लीट है, क्लिक ऑन द सी, मतलब कि उसने बोला कि हाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, हम ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये टास्क हो गया क्लोज, बैक चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड टास्क किसके लिए। देखो अब क्या आ गया, अवेटिंग डिलीवरी आ गया, राइट। आप किसके पास गया, फील्ड सर्विस के पास गया, भाई आइटम रिसीव करो और डिलीवर करके आओ, राइट। जाएगा जाएगा डिलीवर करके आएगा, इसने भी क्लोज कर दिया। So अतुल, जो आपने ये कस्टमर वाला पोर्टल बनाया है, ये आपको सर्विस नाउ आपने रिक्वेस्ट करी थी, ये कैसे हमें मिलता है वाला पोर्टल? नहीं, ओके, बाय डिफॉल्ट सर्विस नाउ पोर्टल देता है /SP के नाम से। अगर आप लॉगिन करोगे ना, मतलब आपका जो पर्सनल इंस्टेंस है /SP डालो लास्ट में, यू कैन सी हियर, ये देखो ये ना, HP और SP. SP सर्विस पोर्टल, Okay, okay, okay. ओके। तो ये सर्विस नाउ देता है, बट यू कैन इजिली कस्टमाइज इट, मॉडिफाइड इट, ठीक है। सो ये भी कंप्लीट हो गया मेरा टास्क। अब देखते हैं तीसरा टास्क कहाँ पे गया। तीसरा टास्क गया ये रहा, लोगों में का स्टेट, यहाँ पे स्टेटस डाल देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे पास देखने के लिए, ठीक। सुना नहीं है, Sorry. ओके। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन हियर, ओके, ये हो गया कॉन्फ़िगर हार्डवेयर एंड टेस्ट द इनिशियल बूटअप। देखो आपके पास एकदम डेस्कटॉप नहीं आता, वो पीछे पीछे काम चलता है सारा का सारा, Right, right. ठीक है। तो उन्होंने देखा भी अच्छा मेरे को कॉन्फ़िगर करना है और क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, ये सब डाल के देना है उसको, मतलब बूटअप वूटअप सब करके देखो सब सही है कि नहीं है। सो आई मार्क Close complete. अपडेट। अब बात ये आ रही है सारी की सारी, जो एक बार इसको पूरा प्रोसेस कर रहे हैं और लास्ट में आ गया डिलीवरी, कि जाओ भाई इसको डिलीवर करके, डिलीवर टू कस्टमर, उसका जो एड्रेस होगा वो लो और जाके डिलीवर करके आओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कंप्लीट करता हूँ, डिलीवर हो गया, राइट। सेम केस हमारे पास अमेजोन में भी होता है, राइट। ऑर्डर किया, आपके पास मैसेज आता है ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर डिस्पैच हो गया, ऑर्डर हब पे पहुंच गया, ऑर्डर डिलीवरी के लिए आउट हो गया, और फिर डिलीवर जैसे आपके डोर स्टेप पे पहुंचता है आपके पास मेरा डिलीवर्ड, राइट। सो वो क्या है, वो सारे टास्क हैं, देखो ऑल कंप्लीटेड, माय RITM हैज बीन मार्क कंप्लीटेड, माय REQ लेट मी सी, इट्स क्लोज कंप्लीटेड, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे REQ, RITM और SC टास्क, ठीक है, इसके साथ हमारे क्या क्या जनरेट हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसके साथ ब्रैकेट में अप्रूवल्स होते हैं हमारे, मेन तो वही होते हैं, Approval. अप्रूवल होते Right. हैं, देन टास्क होता है, SLA. डेफिनेट, वेरी गुड, SLAs भी होते हैं हमारे, राइट। देखते हैं, चलो यहाँ पे कुछ SLA अटैच में क्या हमारे टास्क लेवल पे देखते हैं SLAs। Task पे होंगे वो, right? नहीं, इट डिपेंड्स। नहीं, if request has an approval to approve the request, then नहीं, it
right? Then the SLA, we have the SLA on task. लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो SLA नहीं, टास्क वो रिक्वेस्ट का वो अप्रूव करने के लिए भी कोई SLA होता होगा, राइट? RIPM का। हाँ होता है ना, डेफिनेटली होता है, बट वो है ना, अभी जैसे हमने आउट ऑफ बॉक्स पिकअप किया तो सर्विस नाउ ने यहाँ पे भी SLA कॉन्फ़िगर नहीं करे हुए, टास्क लेवल पे कोई SLA कॉन्फ़िगर नहीं करे। अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो टास्क लेवल पे, ठीक है। अगर चलो हम देखते हैं यहाँ पर, हमने देखा था ना SLA डेफिनेशन, देखते हैं कि कोई टास्क टेबल पे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। लेट्स सी, ठीक है। कोई SLA नहीं लगा हुआ, इसकी वजह से कोई SLA अटैच भी नहीं हुआ, ठीक है। यस वी कैन डू दैट, ओके। सो ये था मेरा ओवरऑल प्रोसेस ऑफ REQ, RETM एंड SA टास्क, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? कुछ डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो करंट सिनेरियो को लेके, आपके करंट कंपनी में कुछ चलता हो और यू नीड समथिंग टू बी ओके, कैसे होता है? कि अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम, अगर ये क्लियर हो गया तो हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। देखो, सिस्टम को कैसे पता कि मुझे REQ बनाना है, और सिस्टम को कैसे पता है कि मुझे लैपटॉप यहीं पे दिखाना है, कहाँ पे? इसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर ही मुझे लैपटॉप दिखाना है या डेस्कटॉप दिखाना है। सिस्टम को नहीं पता, ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे जो आपको दिख रहा है सारा कुछ। देखो, हर 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 प्रेजेंट आइटम का यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल मीनिंग है, टेक्निकल टर्म है यहाँ पे, राइट? जो आपको ये चीजें दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड द कैटलॉग आइटम्स, ओके। जो ये आपको दिख रही हैं, हार्डवेयर, डेस्कटॉप, दिस कॉल्ड द कैटेगरी, ठीक है। और इसके टॉप पे जो आपको दिख रही है, दिस कॉल्ड द कैटलॉग, मेन कैटलॉग, Okay. So basically the flow is the catalog, then item, then category, right? कैटलॉग, कैटेगरी एंड देन आइटम। Okay. Catalog, categories, then item. Okay. आइटम, राइट। Yeah. इन शॉर्ट, मतलब अगर Right. थोड़ा इसको सही करें, योर फैशन वियर। सो if I open the Amazon and I go to the fashion, that is my one of the catalog, ठीक है। Right. Under fashion I have women, men, kids, these are my Categories. categories. Right. In that category I have formal, informal, Item. नहीं, Right. फॉर्मल इनफॉर्मल अगेन कैटेगरी, एंड उसके अंदर पर्टिकुलर शर्ट, टी शर्ट और द टॉप और द जीन्स इज माय कैटलॉग आइटम्स, Right. Okay, I got that. ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर, और ये हमें बनानी पड़ती हैं, एंड दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, कि भाई पता होना चाहिए कैसे इसका हायरार्की कैसे काम करता है मेरा, ठीक है। Okay. बहुत, आज से कुछ टाइम 3 से 4 साल पहले टफ था इसको बनाना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, बट नाउ सर्विस नाउ गिव एवरीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप सोचो और आपको बना बनाया मिल जाएगा, ऐसा हो गया। मतलब जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ओनली 2-3 ऑप्शंस आर देयर, कैन वी हेल्प और मैक्सिमम फोन कॉल आता था। अब क्या है, कैन आई हेल्प भी है, ALM भी है, डिपार्टमेंटल सर्विसेज भी हैं, ठीक है। तो अतुल, हमें अपना कोई कैटलॉग बनाने के, अगर इसको मॉडिफाई करने के लिए वी जस्ट नीड सम हेल्प फ्रॉम डेवलपमेंट, राइट? राइट, Without that we can't do it. आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह कुछ आता है, देन यू कैन डू इट इजीली, दैट्स नॉट अ बिग डील। हम अभी बनाएंगे ना, अपने कैटलॉग आइटम बनाएंगे, देखना। लेकिन हम क्या यूज करेंगे, हम जो हमें जो सर्विस नाउ ने दिया हुआ है वो सब यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। सो ये फंडामेंटल क्या है, यहाँ पर लिखो मेंटेन, ठीक है। ये देखो, ये आ गया सर्विस कैटलॉग। ये 4 या 5 कहानी पे सारा खेल होता है यहाँ पर। मेंटेन कैटलॉग, मेंटेन कैटेगरी, मेंटेन आइटम, ये तो अभी सर्विस नाउ ने नया दिए हैं 2 ऑप्शंस,
अदरवाइज ये 3 ही पे काम होता है, ठीक है। सर्विस नाउ ने क्या बोला भाई, सर्विस नाउ ने बोला आई कैन गिव यू द डिफॉल्ट एज वेल समथिंग। कैसे? अब देखो ये जो है सर्विस कैटलॉग, ये मेरा मेन कैटलॉग है, which should be available to my end users. I go here, click on the maintain catalog, कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट, ये आ गया। तो सर्विस नाउ ने मुझे 3 कैटलॉग बना के दिए, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 सोर्स, नंबर 3 सर्विस कैटलॉग। टेक्निकल उसने पोर्टल पे नहीं डाला, उसने बोला पोर्टल पे नहीं चाहिए टेक्निकल किसी को भी, सिर्फ सर्विस कैटलॉग को। Now if I want to create my own catalog, let's see here. So I can just go catalog. फिर इसका कुछ ऐसा आपको करना तो आप कर अभी सकते मेरे को एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब Yes. हम बनाते हैं ट्रेनिंग कैटलॉग, राइट? हैं, अब अभी जो है हमारा सर्विस पोर्टल है, वी कांट से इट कैटलॉग, सर्विस कैटलॉग, राइट? वी Sorry. कैन ओनली से, अभी जो सर्विस पोर्टल में हम सर्विस कैटलॉग बना रहे हैं ना, राइट, तो अभी जो सर्विस पोर्टल है उसको हम सर्विस कैटलॉग नहीं कह सकते। कैटलॉग इज लाइक कि एक्चुअली हमारी कंपनी, आई मीन हमारे यहाँ क्या है कि हमारा सर्विस कैटलॉग ही है, उसके अंदर कैटेगरीज है, फिर उसके अंदर आइटम्स है, राइट? एक ही कैटलॉग है वो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, नो वरीज भाई। अब अच्छा मेरी बात, रितेश मेरा सही कह रही हो ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही कैटलॉग है ना अभी, उसके अंदर फिर हम कैटेगरीज हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, फिर आइटम। अब यहाँ पे जो है सर्विस पोर्टल के अंदर डिफरेंट कैटलॉग्स बनाए जा रहे हैं। नहीं, रहना कंफ्यूज हो रहे हो। कैटलॉग एक ही है, सर्विस कैटलॉग, ये कैटेगरीज है सारी की सारी। नहीं तो अभी अब जो ट्रेनिंग कैटलॉग बना रहे हैं उसका नाम हम ट्रेनिंग कैटलॉग दे रहे हैं ना, राइट। तो बट वो तो कैटलॉग उसको फिर कैटलॉग। रुको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, राइट, वो आपको 2 कैटलॉग देते हैं। अगर आप कहीं वहां जाते हो जहाँ ब्रीज वगैरह मिलती हैं या नॉनवेज मिलते हैं, आपको 2 या 3 कैटलॉग देते हैं आपको। नंबर 1 इज योर फूड कैटलॉग आइटम, फूड कैटलॉग, राइट। Number 2 is for your drinks and the wine catalog. Number 3 is if you looking for something for the non-veg. Then the number 4 item, catalog item. Sorry, catalog. So उन्होंने आपको 3 कैटलॉग दिए। उन 3, मान लीजिए आपने पिकअप किया वाइन्स का, वाइन कैटलॉग आपने पिकअप किया। वाइन्स में आप क्या देखेंगे, हार्ड ड्रिंक्स क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, विस्की क्या है, बियर क्या है, और ये सब चीजें क्या है, राइट। सो उस कैटलॉग के अंदर 3 कैटेगरी उन्होंने आपको कैटेगरी दी। अब जैसे सिंपल जो खाने का मेन्यू हमें मिलता है उसमें यही नहीं होता, बस उन्होंने लिस्ट बना के दे दी। उन्होंने व्हाई दे हैव द सेपरेट सेक्शंस, सैलेड्स, डेजर्ट, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, सो दैट पीपल शुड नॉट बी रीड 100 लाइंस, वो अपना कैटेगरी में जाए। भाई अब जैसे मेरा मन है कि मुझे सिर्फ जाके आज चाइनीज ही खाना है, सो मैं वो कैटलॉग लूंगा, उस कैटलॉग में कैटेगरी ढूंढूंगा, भाई चाइनीज कहाँ पर जाऊंगा और अपना आइटम ऑर्डर कर दूंगा, राइट। सो इफ यू आर सेइंग दैट इन योर कंपनी ओनली 1 कैटलॉग, हो सकता है 1 कैटलॉग ही होगा, जनरली 1 कैटलॉग ही होता है, उसके अंदर कैटेगरीज डिफरेंट होंगी, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस पेज पे मैं सिर्फ एक ही कैटलॉग डाल सकता हूँ, मैं मल्टीपल कैटलॉग डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी में जो मर्जी डालूं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा अब आप एक चीज देखो, क्या बोलूं मैं इसको, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने ऑफिस में जो आपका एक्स कंपनी है, ठीक है, उसका पोर्टल बना हुआ है एक्स, ठीक है, उसमें एक कैटलॉग आइटम है जिसका नाम है वैलिडेट योर और वैलिडेट योर ऑफर लेटर, राइट, वैलिडेट योर बैंक रिसिप्ट्स, ठीक है। वो लॉक है आपके लिए, यू कैन नॉट डू दैट पार्ट, यू कैन, सॉरी, उसका नाम है चेंज योर बैंक डिटेल्स या चेंज योर टैक्स डिटेल्स, वो आपके लिए लॉक है, आपके लिए विजिबिलिटी आपको दिख ही नहीं रहा। क्यों? वो आप डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वहां पर अपडेट होगा वो, राइट। तो अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, दिसंबर मंथ में हम अपने टैक्स प्रूफ्स देते हैं, राइट, और जब वो टैक्स प्रूफ सबमिट हो जाते हैं
तब तक वो पोर्टल बंद रहता है, वो उसकी विजिबिलिटी क्लोज कर देता है, भाई किसी को नहीं दिखेगा ये पोर्टल, राइट। सो वो सब चीजें यहाँ पर होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी या एंटाइटलमेंट्स कहते हैं, कि ये वाला डेस्कटॉप आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजर लेवल से ऊपर का है, इसलिए आपको डेस्कटॉप दिख रहा है। अगर आप ज्वाइन एज ए कंसल्टेंट या एज ए सीनियर कंसल्टेंट फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो आपको कैटलॉग आइटम भी नहीं दिखेगा ये आपको, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है वो देखना, पीछे सेटिंग कर रखी है। सो दैट इज कॉल्ड द विजिबिलिटी। ओके, ये बहुत जरूरी चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे पास जो ये है रिमोट टीवी है, उसमें एक ऑप्शन होता है चाइल्ड लॉक, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चाइल्ड लॉक, कि ये चैनल बच्चे को नहीं दिखना चाहिए, राइट एंड यू पुट द चाइल्ड लॉक, राइट। क्यों? क्योंकि तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो बच्चे की विजिबिलिटी से हटा रहे हैं उसको। सेम काम आपकी कंपनी ने आपके लिए पहले कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक कोड लिख दिया कि जो भी एम्प्लॉय मैनेजर लेवल से नीचे है उसको एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है, और ऐसा होता भी है, राइट। प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना। मैं आपको लाइव एग्जांपल नहीं दे पा रहा कुछ ऐसा कि कुछ पता चल पाए, ठीक है। अगर कुछ याद आता तो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो हम देख रहे थे ये वाला, हम अभी चल ठीक है, हम अभी बनाते नहीं, पहले जो बने हुए वो देखते हैं पहले, फिर बनाने का हम कल देखेंगे आराम से, ठीक। अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज। तो अभी जो हमने देखा ना, हम उसको सिस्टम में देखते हैं वो कैसे कैसे बना हुआ था। तो हमारा क्या था, सर्विस कैटलॉग, राइट। ये था हमारा सर्विस कैटलॉग, राइट। तो हमने देखा सर्विस नाउ ने मुझे बना के दिया हुआ सर्विस कैटलॉग के नाम से। हम अपना नया भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। ये नाम डाला, उसका डिस्क्रिप्शन डाला, सर्विस कैटलॉग IT नाउ। देखिए इस पे क्लिक करके कुछ आता है, ये डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, नहीं कुछ नहीं आ रहा, कैटेगरीज आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके उन्होंने कि इमेज से डाल, ठीक है। ये इमेज क्यों डाली उन्होंने, क्योंकि अगर मान लीजिए जो ये वाला पोर्टल है ये तो एंड यूजर को दिखेगा, राइट। मान लीजिए कल आप अपने लैपटॉप पर लॉगिन नहीं कर पाते, ठीक है। आप सर्विस डेस्क को कॉल करते हैं या IT सपोर्ट को कॉल करते हैं, हे मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा यार, कोई इशू है, आप टिकट रेज करोगे क्या? तो वो कहाँ से टिकट रेज करेंगे आपके बिहाफ पे? उनके लिए अलग व्यू होता है यहाँ पर। यहाँ जाओ सर्विस कैटलॉग, ठीक है, और सेल्फ सर्विस के अंदर जाओ, तो उनके लिए ये व्यू होता है। वो यहाँ से आप बोलेंगे भाई मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, वो जाएंगे आपके भी, आप यहाँ से रिक्वेस्ट चेज कर देंगे, तो आपका पासवर्ड रिसेट नहीं है, इंसिडेंट है, क्या है बताओ, राइट। तो हम वापस अपनी जगह पे ही आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे तो 3 कैटलॉग मुझे बना के दिए सर्विस नाउ ने, टेक्निकल, रिसोर्स और दिस। मैंने ओपन किया सर्विस कैटलॉग, तो ये मेरा बेस है सर्विस कैटलॉग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा बनाना है तो मुझे सबसे पहले, तो हमें खाली टेक्निकल सर्विस कैटलॉग का की विजिबिलिटी है, राइट। अभी हमारे पोर्टल पे उसी की विजिबिलिटी है। हाँ, क्योंकि हमें टेक्निकल और वो सेकंड वाला तो दिख नहीं रहा है। नहीं रहा, राइट। तो वो है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट से कुछ ना कुछ ACLs लगी हैं इन द बैकग्राउंड, ताकि वो कोड मुझे ना दिखे या वो मुझे पोर्टल पे ना दिखे, इस वजह से वो हमें नहीं विजिबल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ओके। अब बारी आ गई, मैंने कैटलॉग बना दिया अपना। मान लीजिए मैंने एक कैटलॉग बनाया ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। अब मुझे कैटलॉग के अंदर कैटेगरी भी चाहिए, ये सब चाहिए मुझे, एक्जेक्टली, राइट। तो मैं यहाँ जाऊंगा मेंटेन कैटेगरीज, ओके। मैंने क्लिक ऑन द मेंटेन कैटेगरी, एक मिनट, इट्स लोडिंग नाउ। क्योंकि it's a lot of categories now, so it take time to be load actually some time.
सो ये देखो ये रहा, बताओ जो कैटेगरीज हमें यहाँ दिख रही है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्विक लिंक्स, डेलीगेशन, सब यहाँ पर आपको दिखेंगे, राइट। क्या है, Okay. ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, पेरिफेरल्स, रूल डेलीगेशन, इमरजेंसी चेंज, और ये किसके साथ टैग है, ये टैग है मेरे कौन से कैटलॉग में टैग करना है मुझे, सर्विस में या टेक्निकल में, राइट। देखो इमरजेंसी चेंज आपको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि वो टेक्निकल में, टेक्निकल का विजिबिलिटी नहीं है इसको, ठीक है। तो ये हो गए मेरे सारे के सारी 46 मेरे पास कैटेगरीज हैं, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। देखो जैसे फैसिलिटी है, ये फॉल्स की हुई है, देखिए फैसिलिटी में कुछ है, फॉल्स की हुई है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, देखो क्या करता हूँ, हम पिकअप करते हैं हार्डवेयर था ना, हम प्रिंटर पिकअप करते हैं, प्रिंटर किसके अंदर है, हार्डवेयर, और हार्डवेयर किसके अंदर है, सर्विस कैटलॉग के अंदर। लेट्स सर्च फॉर द प्रिंटर, ये रहा, देखो प्रिंटर का क्लिक किया मैंने, और प्रिंटर का पेरेंट कौन है, हार्डवेयर, Hardware. राइट, और हार्डवेयर का पेरेंट कौन है, सर्विस कैटलॉग, Service catalog. समझे, Okay. राइट। और देखो उसने बोला कि इसके नीचे कौन कौन से हैं, 3, इसके नीचे 3 आपको मिलेंगे आइटम्स, लेट्स सी। सॉरी प्रिंटर पे क्लिक करना था, ठीक है ना, ये 3 मिल गए मुझे, राइट। अब बारी आती है, चलो भाई तो ये बात तो हो गई कि भाई कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी सब कैटेगरी। अब बात ये कि ये बनते कैसे हैं, चलो अब हम चलते हैं आइटम्स के ऊपर। ये देखो ये रही सारी आइटम्स, 146 आइटम सर्विस नाउ ने में दी हुई है बना के। लेट्स सी ऑफिस प्रिंटर, देखिए ऑफिस प्रिंटर कहाँ पर है, ये ऑफिस प्रिंटर, क्लिक हियर, ऑफिस प्रिंटर है, कौन से कैटलॉग में दिखेगा, Service सर्विस में catalog. दिखेगा, तो दिख रहा है मुझे सर्विस कैटलॉग में। अगर मैं इसको यहाँ पे टेक्निकल में भी डाल दूंगा, डाल देता हूँ तो टेक्निकल में भी दिखेगा ये। अब कैटेगरी क्या है, प्रिंटर कैटेगरी, हार्डवेयर, बहुत बैकग्राउंड नॉइस है अभी तो, रितेश कहीं घूम रहे हो क्या बाहर आप, नहीं नहीं, मेरे यहाँ से नहीं है ये आवाज, शायद रायना के साइड से रहेगा। रहना कहाँ मैं घूम तो रही एकदम साइलेंट रूम में हूँ। नहीं मैं एक्चुअली मेरा घर ऑन रोड है तो मैं अपने आंगन में बैठी हूँ तो उस बसेस की आवाज आ रही हो। सर तो इसे कहते हैं तो वो मजे लेना पूरे तरह से, मतलब कि आंगन आंगन में बैठ के झूले पे, और लैपटॉप तो ऑन करना नहीं, और फोन पे बस हेडफोन लगाने और मजे में सुन लेना, और साथ में चाय का कप तो होगा ही होगा डेफिनेटली, तो काम बन गया तो, ठीक है कोई बात नहीं, गुड। बात यह है कि बस समझ में आना चाहिए चीज, कहीं भी बैठो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब देखो ये हमने बनाया प्रिंटर, यहाँ पर प्रिंटर दिखा मुझे, ऑफिस प्रिंटर, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब चीजें कहाँ से आती है मेरी, ये देखो प्रिंटर, और उसका नाम क्या है, HP LaserJet 20 प्रिंटर, सॉरी 4020 प्रिंटर, ये आ गया नाम इसका। इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अनलकीली और कुछ नहीं है इसमें, ये लिखा हुआ है बेस मॉडल, ये यहाँ से आ रहा है इसका, राइट। डाल दे अपना नाम भी डाल देते हैं हम अपना, बेस मॉडल इनटू एक्सपोर्ट, ठीक है, हो गया। लेट एक बार सेव कर देते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, कुछ फर्क पड़ता है।
क्योंकि इसमें चेंजेस क्विकली आते हैं, बहुत क्विकली चेंज आते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कैशे क्लियर होगा एंड देन इट विल बी टेक फॉर द टाइम। आ गया, ठीक है। अब बारी आती है नीचे आता है, थोड़ा सा इसको और देखते हैं, स्टडी करते हैं। अगेन 100% देखो, सर्विस नाउ ने इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे तैसे करके ऊपर हैप्पी कर सकते हो। ये देखो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वर्दाना, ये फलाना ढिमकाना सब ऑप्शंस है आपके पास। फुल स्क्रीन करो और कहानी लिख दो बैठ के यहाँ पे। राना बोलेगी नहीं अतुल मजा नहीं आ रहा, मैं तो इसको बोल्ड करती हूँ और इसका कलर चेंज करती हूँ पहले तो जरा, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेव कर लो, रीलोड कर लो, ठीक, डन चेंजेस, पिक्चर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखो यहाँ पर है, अब नीचे थोड़ा सा इसको, प्रोसेस इंजन, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। देखो, दिस इज माय थ्योरी, इफ यू आर एग्री डेफिनेटली, इफ नॉट अपना, सबको अपना थ्योरी रहता है, ठीक है। मेरा मानना है कि सिस्टम को कुछ नहीं पता, सिस्टम बेवकूफ़ है पूरा। मुझे बताना है सिस्टम को तुझे कैसे काम करना है, ठीक है। मैं सिस्टम को बताऊंगा कि भाई अब अप्रूवल ले ले, मैं सिस्टम को बताऊंगा अब टास्क क्रिएट कर दे, और मैं सिस्टम को बताऊंगा अब इसको क्लोज कर दे। सो सर्विस नाउ ने क्या बोला, भाई तुम भी इतना काम क्यों करते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बना के देता हूँ, दिस इज कॉल्ड द वर्क फ्लो। इन तीनों में से एक ही आइटम चलता है, या तो फ्लो चलेगा, या वर्क फ्लो चलेगा, या एग्जीक्यूशन प्लान चलेगा, टोटली टोटली अप टू यू, ठीक है। मतलब अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं एग्जीक्यूशन प्लान खुद बना सकता हूँ, मतलब वर्कफ्लो भी बना सकता हूँ मैं, इवन एग्जीक्यूशन प्लान भी, जो हम कल डिस्कस करेंगे वर्कफ्लो कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं ये, ठीक है। सो ये सर्विस नाउ ने डिफॉल्ट बना के दिया हुआ है कि भाई आप कोई भी हार्डवेयर लोगे ना, किसी भी हार्डवेयर को लो, प्रिंटर लो, लैपटॉप लो, डेस्कटॉप लो, ये वाला वर्कफ्लो चलेगा। अभी वर्कफ्लो कैसे हम कल देखेंगे, अभी नहीं। पिक्चर्स, यही थी ना हमारी पिक्चर जो हमें नजर आ रही है वहां पे, प्राइसिंग, Yes. डॉलर में 990 है, आपको चाहिए रिकरिंग प्राइसेस, डाल दो भाई, हर 2 वीक के बाद कितना पैसा लूंगा मैं, $890 और लूंगा मैं, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड सी द डिफरेंस। देखो आ गया, अरे बाप रे, तो बहुत महंगा यार लैप प्रिंटर है, हर 2 हफ्ते बाद में 65,000 ले रहा हूँ, 70,000 का तो लैप प्रिंटर नहीं है कुल मिला के ये। सो ये देखो, हमने वहां एंट्री करी और यहाँ पे पैसे आ गए। और ये भी बता दें कि एवरी 2 वीक्स, क्यों, क्योंकि देखो जब मैं किसी जिस कंपनी में काम करता हूँ या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जो लैपटॉप्स हमें मिलते हैं वो लीज के लैपटॉप होते हैं, लोन के लैपटॉप होते हैं। राजेश आई एम सेइंग, रितेश नो बेटर बिकॉज ही इज दैट पोजीशन, ही नोस कि इसका सबका कैसा खर्चा रहता है, तो उसका कॉस्टिंग लिया जाता है प्रोजेक्ट से, राइट। और कॉस्टिंग के लिए कैसे रहता है ना, फिक्स किया जाता है कि भाई साल में लूंगा मैं, 1 साल में, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, जहां बोलोगे वैसे कर लूंगा, नहीं तो डेली भी चार्ज करता हूँ मैं तो एनुअली। तो वो चीजें रहती हैं यहाँ पे। मैं क्लिक सेव हियर, क्योंकि भाई अगर आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ये सर्विस नाउ बिल्ड कर रहे हो, वो अपने कस्टमर को सर्विस देता है, तो आपसे पैसा तो लेगा ना, राइट। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो पहले बता दो भाई इतना पैसा एनुअली लगेगा, अब बताओ तो मैं लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो, सिंपल, ठीक है। लकीली यहाँ पे क्या है कि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है एक्स्ट्रा, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे था, राइट। अब देखो, हाँ यहाँ पर हम वेरिएबल सेट बनाते हैं, ये भी डिस्कस करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आता हूँ पहले मैं। नॉट अवेलेबल फॉर, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो प्रिंटर है, ये उसको नहीं दिखेगा जिसका रोल एसएनसी अंडरस्कोर एक्सटर्नल होगा, उसको नहीं दिखेगा। नॉट अवेलेबल फॉर, दिस इज कॉल्ड द विजिबिलिटी, बाकी सबको दिखेगा। अच्छा चलो, अगर मैं देखता हूँ यहाँ नॉट अवेलेबल फॉर में एडमिन भी डालते हैं, देखते हैं, करें एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। और ये चीजें पता है आपको कब काम आती हैं, डोंट थिंक फ्रॉम द ऑपरेशन पर्सपेक्टिव, थिंक फ्रॉम द कंसल्टिंग पर्सपेक्टिव। कल आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, अच्छा एडमिन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडमिन है ना ये, आईटीएल देखिए कोई एक कंसेप्ट याद आया मुझे, मेरे वाइफ का स्टार्टअप है ना, सो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे है कि कस्टमर मतलब वो कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते,
राइट कुछ लोग स्टार्टअप वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने कैसे ऑप्शन दिए थे कि मेरे वाइफ के स्टार्टअप ने वो एप्लीकेशन बिल्ड किया है एक जिम के लिए, ओके और उनको बोला कि हम लोग महीने का 2,500, आप लोग मुझे 2,500 दो हर एक महीने का। राइट सो आपको कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 1 साल वो एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, ये राइट कंडीशन है। तो उसमें मतलब वो कॉस्ट, मतलब ऐसे 2-3 कस्टमर्स को बना के दे दिया कि वो राइट डेवलपमेंट कॉस्ट कवर हो जाता है, और एग्जैक्टली कस्टमर को भी हो कि चलो भाई ठीक है, मुझे कम कॉस्ट में आई एम गेटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह, ऐसा एक मतलब याद आया वो। राइट राइट राइट। सो अब आपको क्या करना है रितेश, आपने एग्जांपल तो बड़ा अच्छा दिया है। अब मैं आपको काम देता हूँ। आपको जो जो जिम का जो एप्लीकेशन है ना, वो हाँ। सर्विस नाउ में बनाना है। अच्छा। टेबल टेबल बनाओ, मॉड्यूल्स बनाओ, और जो वहां पर फंक्शनैलिटी है, मिनिमम फंक्शनैलिटी वो यहाँ पर आपको बनानी है। हम्म। सोचो कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए। अब देखो, अगर उनका जिम जिम का एप्लीकेशन है तो उनके पास मेंबर डिटेल्स होगा, रिट्रीव करने का होगा, कौन से मेंबर्स मेरे चल रहे हैं अभी, किसका कब का एनुअल फीस एक्सपायरी होने वाली है, किसने पीटी लिया है, किसने पीटी नहीं लिया है, किसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, किसने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, वो सब चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है। ओके। सो यहाँ पर हम अपनी विजिबिलिटी सेट करते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर और अवेलेबल फॉर। आई गेस यहाँ पर मुझे दिखा नहीं यार, क्यों नहीं आया आईटीएल रूल। चाहिए था ना, सॉरी। यूजर विद एडमिन रोल, हाँ ये आ गया। मतलब ये सर्विस ना हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। उसने बोला मैं तुम्हें बना के देता हूँ, तुम्हें चिंता की करने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक एडमिन ढूंढोगे, मैं बताता हूँ जिस भी यूजर के पास एडमिन रोल है उसको दिखेगा ही नहीं ये। चलो ऑल द बेस्ट करते हैं। हो गया नॉट अवेलेबल फॉर। लेट्स रिफ्रेश इट, क्या होता है। अरे तो दिख गया, ये तो गड़बड़ हो गई। इसके पास एडमिन रोल नहीं है क्या? होना तो नहीं चाहिए यार। आई नीड टू चेक द प्रोफाइल कि भाई क्या है। लॉजिकली इसको अवेलेबल, इसको नहीं दिखना चाहिए अगर ये एडमिन रोल है। इसका प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा है नॉट अवेलेबल फॉर, कि इस रोल के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए ये। अब मुझे देखना है कि इसको रोल कौन सा है, हमारे इसको। ठीक है। देन कैटेगरी, कैटलॉग्स हमने देखिए 2 कैटलॉग्स में मैप कर दिया मैंने इसको। रिलेटेड आर्टिकल्स कुछ आपको ऐड करने, नॉलेज आर्टिकल्स वगैरह आप कर सकते हो, और कोई और कैटलॉग आइटम आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो इसके साथ। ठीक है। लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये चीजें कब आपको यूज करनी चाहिए, मतलब कि ये चीजें क्यों जरूरी है। डेफिनेटली ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीजें कब होती हैं, जब आपको कोई नया बिजनेस मिलता है। ठीक है। तब कस्टमर आपको बोलता है भाई मेरे तो 150 कैटलॉग है, करोगे काम मेरे लिए? हाँ जी कर देंगे काम तो। बट इट इज डिपेंड ऑन द आर्किटेक्ट एंड द कंसल्टेंट कि उस 150 को कैसे बनाया जाए कि मिनिमम एफर्ट लगे। तो वहां पर हम ये चीजें चेक करते हैं सारी की सारी। देखिए कुछ फर्क पड़ा क्या यहाँ पे? हमने ऐड तो करा कुछ नया सा। अच्छा हाँ देखो ये आ गया। वो था ना, देखो, अरे देखो अब समझ में आया। देखो Amazon कितना हीरो बनता है। आप मोबाइल फोन लो, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इसके साथ बैक कवर भी है, इसके साथ चार्जर ही है, इसके साथ वो भी है। तो ये क्या है, रिलेटेड आइटम्स है। देखो आ गए ना सारी की सारी। राइट। भैया प्रिंटर ले रहे हो तो प्रिंटर के लिए आपको लैपटॉप तो चाहिए होगा, लैपटॉप ले लो मेरे से। लैपटॉप चाहिए तो आपको एग्रोबैट भी चाहिए होगा, ले लो मेरे से। राइट। So by this way we can give the flexibility to our customers. Right. Right. So now don't think from the operation perspective. ये पूरा का पूरा सेशन ना ऑपरेशन से मत सोचो, सोचो कंसल्टिंग के पर्सपेक्टिव से। I appear for an interview approximately 2 years or 3 years back. उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अतुल, I have a customer who has 50 catalog items. What will be your approach? 50 तो नहीं बनाओगे तुम। अगर मान लो मैं अपने कस्टमर को 50 आइटम यहाँ बना के दे रहा हूँ तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, कस्टमर भी पागल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर अप्रोच? सोचो इस पे एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास को। अतुल एक क्वेश्चन पूछना है इस पे। जी सर।
कि आपने अभी तक सर्विस नाउ में मैक्सिमम कितने कैटलॉग्स देखे हैं? मेरा जो अभी जो लेटेस्ट करंट में चल रहा है उसके हाँ पास मतलब कि 15 से 20 हैं हाँ कैटेगरीज, जिसमें हाँ। टोटल 200 आइटम्स हैं उसके पास। कितना आइटम्स है? आइटम्स हैं उसके। 200 आइटम्स है, हाँ, ओके। 200 आइटम है, प्लस वो एनहांस करने के लिए बोल रहा है अभी। मतलब 200 आइटम कैसे हैं कि हर चीज उसने ड्रॉप डाउन में डाला हुआ है। नाउ ही इज अच्छा, प्रपोजिंग कि मुझे सारे ड्रॉप डाउन निकाल के सब आइटम बना के दो। सो अप्रोक्सीमेटली 4 to 500 कैटलॉग आइटम्स ही इज डिमांडिंग टू अस। ओके। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मुझे चैलेंज किधर आया था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, यूपीएल में, जब सर्विस नाउ रोल आउट किया। सो राइट हमारे 200 के ऊपर जा रहे थे कैटलॉग राइट टोटल। तो राइट। सर्विस नाउ खुद चकरा गया, बोलता है अरे इतने कैटलॉग होते नहीं, हम लोग इतने नहीं जगह पे रोल आउट करते हैं। सो राइट देन वो 200 से हम लोग फिर भी मतलब सब मर्ज करके कि कॉमन टास्क वगैरह ये करके राइट। हम लोग ऑलमोस्ट 100 प्लस पे आए थे फिर भी वो। इतने कैटलॉग्स है वहां पे। अब देखो ना, आप इसी पे देखो। आपको जो डिफॉल्ट सर्विस नोड है उसी उसी पे चेक करके देखो। ठीक है। हाँ एडीएम एप्लीकेशन एक, ठीक है, डिपार्टमेंटल सर्विस। But these are the categories. मैडम इसके अंदर जो दिख रहा है वो तो आइटम है ना, ये देखो ये तो आइटम हाँ है। वो आइटम है, या ठीक है। अब देखो, अच्छा हम यहाँ पर जा रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो हमारे पास मेंटेन आइटम्स देखो। अगर मैं से स्टैंडर्ड कैटलॉग की बात करते हैं, फिल्टर करते हैं इसको, शो मैचिंग। लो सर 137 तो सर्विस नाउ बाय डिफॉल्ट अपने पोर्टल पे दे रहा है। मींस विद द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन 137 वो दे रहा है अभी हमारे पास। हम्म। सो नाउ डिमांड इज इंक्रीजिंग। कस्टमर चाहता है कि मतलब हमारे जो कंपनीज हैं वो चाहते हैं कि मेरे कस्टमर को सब कुछ पोर्टल पे मिलना चाहिए। सो डेफिनेटली वो इंक्रीज हो गई होगा। बट द ओनली थिंग फ्रॉम द कंसल्टिंग पर्सपेक्टिव, जब आपको कोई कैटलॉग आइटम देता है, आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए। पहले ये बताओ इसमें से ऐसे कितने कैटलॉग आइटम्स हैं जो टॉप मोस्ट यूज होते हैं मेरे, नंबर वन। फिर उनकी कैटेगरीज को कॉमन करके देखो, उनकी सब कैटेगरीज को कॉमन करके देखो। ये देखो कि क्या मैं किसी कैटलॉग आइटम को दूसरे के साथ मर्ज कर सकता हूँ तब। ठीक है। अब जो एक लास्ट पॉइंट लेते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं हम अपना। हमने कौन सा लिया था? एग्जीक्यूटिव लैपटॉप, राइट, सॉरी डेस्कटॉप। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें वेरिएबल्स थे मेरे, राइट है ना? राइट। देखो ये रहे वेरिएबल, हमने अलग अलग 5 वेरिएबल बनाए। अगर यही वेरिएबल मेरे डेस्कटॉप के लिए भी यूज हो जाए, लैपटॉप के लिए भी यूज हो जाए, प्रिंटर के लिए भी यूज हो जाए, तो मैं इसका वेरिएबल सेट बनाता हूँ, एक बॉक्स कंटेनर बना के छोड़ देता हूँ मैं इसका, सो दैट आई कैन यूज मल्टीपल प्लेसेस। बट उसमें नुकसान क्या होता है, उसमें मैं किसी भी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब अगर जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने दी वो स्टैंडर्ड ही रहेगी फिर मेरी। ठीक है। जैसे ये था सीपीयू स्पीड, इसने क्या टाइप का बनाया? मल्टीपल चॉइसेस। लेट्स सी कि उसने बनाया क्या, देखते हैं। रितेश की रिक्वेस्ट पे हमने सेशन आज किया आपके लिए कि रैना को लेके आना मुझे इसमें। ठीक है। सी सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजर ना, तो रैना को बहुत कुछ काम करना है अभी आगे जाके। ठीक और है, ये बेसिकली कैटलॉग पे तो ज्यादा ही करना है। एग्जैक्टली राइट। सो देखो टाइप मेरा ये था, कैटलॉग आइटम मेरा क्या था, ये था ना एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप। नाम क्या था? सीपीयू स्पीड, ऐसे ही आया था सीपीयू स्पीड। नोटेशन मैंने बोला कि ये सब चीजें डाल दो भाई, दिस कंप्यूटर हार्ड माना, ये हेल्प टेक्स्ट है। ठीक है। और इफ यू स्क्रॉल डाउन, टाइप स्पेसिफिकेशन, नॉर्मल चॉइस, डायरेक्शन, डाउन या क्रॉस, मतलब कि आपको ड्रॉप डाउन में दिखना है या आपको ये ऐसे ऐसे देखना है। मैं क्रॉस करके देखूँ क्या? तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दी मैंने, परमिशंस भी कुछ नहीं दी, अवेलेबिलिटी भी कुछ नहीं दी। और देखो यहाँ पे मैंने अपनी 3 वैल्यूज डाल दी, चॉइसेस डाल दी मैंने अपनी, राइट। इफ आई सेव इट एंड गो टू हियर फॉर माय एग्जीक्यूटिव लैपटॉप्स, डेस्कटॉप सॉरी, सर मुझे देखना कि वो अक्रॉस करके वैल्यू कैसे आती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे मैंने अभी ट्राई करके देखा, विच एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये देखो आ गई ना वैसे, राइट।
Right. मतलब इसमें आपका एफर्ट कुछ नहीं लगा, बट कस्टमर को अच्छा लगेगा भाई मुझे ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए मेमोरी है 1 GB 2 GB 5 GB 8 GB 100, मतलब 10 लाइनें हैं, तो ड्रॉप की बजाय मैं यहाँ ऑप्शन देता हूँ, उसको देखने के बजाय ऊपर ही टॉप पे दिख जाएगा मुझे, मेरे मतलब देखते बजाय मेरे लिए कुछ है भी कि नहीं है यहाँ पे, राइट। सो ये मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं और इसको यूज किया मैंने अपने कैटलॉग आइटम के अंदर। इसको मैंडेटरी कर देंगे तो वहाँ मैंडेटरी पूछेगा, ये देखो आप पूछे डिफॉल्ट वैल्यू बताओ, देखिए क्या करता है भाई। मैं तो फुल R&D करता हूँ, मेरे को खुद ज़्यादा नहीं रहता इसमें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, देखते हैं इसका क्या होता है। आ गया मैंडेटरी, राइट, बट नन लिखा नहीं है। अब नन लिखा क्यों नहीं है देखना पड़ेगा मुझे, क्या नहीं शायद वो बैकग्राउंड में लेता होगा। अब देखो, अब नाउ सी नाउ द बिहेवियर ऑफ द सर्विस, नाउ आई एम क्लिकिंग हियर, फाइन, आई क्लिक हियर, फाइन, आई क्लिक हियर, मतलब देखो कैसे रोटेशन अपने आप रोटेट कर रहा है वो, कि भाई ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेक्स्ट फंस जाएगा मेरा, वो चीजें, राइट। सो ये चीजें मेरी आती हैं वेरिएबल से, ठीक है। अब आज के लिए इतना तो हो गया हमारा। अब कल हम क्या डिस्कस करेंगे मेनली, मैं अगर यहाँ पर आऊँ दोबारा से इसके ऊपर, सी पे शायद वेरिएबल ही था ना, सॉरी। सो नाउ थिंक फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव कि उसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अरे यार तो कोई सही सीधा से चलते हैं। कस्टमर और एंड यूजर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल का एक एग्जांपल, एक वेबसाइट लाइव हो रहा है आज, मतलब लाइव हो गया, कुल देवी का हमारा टेम्पल का। ओके सो मेरे वाइफ ने बनाया, तो मोबाइल से कैसे दिखेगा, तो मेरे पिताजी जो है इज अ नॉन IT पर्सन, ही वाज इन गवर्नमेंट सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके सो एंड यूजर करके उनको कि बोला कि ये वेबसाइट चेक करो। चेक करो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मोबाइल वर्जन होता है ना, उसमें हम लोग देखो ड्रॉप डाउन के लिए लाइंस करते हैं, ऐसे 3 लाइंस। राइट तो राइट 3 लाइंस में क्लिक किया है कि सब ऑप्शंस दिखते हैं, मेन्यूज वगैरह। राइट, तो वो बोला किधर है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही पेज दिख रहा है। सो मैं मेरे वाइफ को बोला कि सी ही इज आवर एंड यूजर। तो राइट, अभी कि इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कोई लैपटॉप पे जाने वाला नहीं है साइट देखने के लिए, आई तो उनको फॉरगेट, सामने दिखना चाहिए। यस यस यस, हाँ, तो उन्होंने वो मेन्यू एक्सपैंड किया कि जैसे कोई लॉगिन करता है तो सामने सब दिखाई देगा। सो राइट इट राइट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं बोला ऐसा ही करना है। राइट। अब देखो जैसे हमने ये बनाया तो मैं इसको ट्राई इट करता हूँ एक बार कि भाई देखो कैसा दिखता है। आई फॉरगेट द शॉर्टकट कमांड आई गेस। देखो ये ऐसा दिखेगा, ये हम्म कंट्रोल 7, मतलब there is a command in ServiceNow which give you to see the what I can say mobile view as well. हम्म आप किसी भी का भी देख सकते हो, वो देखें क्या व्यू शॉर्टकट की। जनरली 70% लोग मोबाइल, 70 क्या 90% लोग मोबाइल से ही देखते हैं आजकल। राइट 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 राइट, मतलब इसका कोई शॉर्टकट की रहता है, फॉरगेट। देखो जितने भी आपके मैनेजर्स हैं उन सबको अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रूव करना तो मोबाइल पे करेंगे। अरे भाई शॉर्टकट की बता दे यार, क्या था इसका। यहाँ देखिए मोबाइल में जाके कुछ मिलता है क्या। सिस्टम मोबाइल, मोबाइल स्टाइल पॉलिसीज, डाटा आइटम्स, प्लेट्स, नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कैसे है, बट डेफिनेटली सर्विस नाउ देता है फंक्शनैलिटी अभी अब, कि अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो। आई फॉरगेट द शॉर्टकट कि कैसे रहेगा उसका शॉर्टकट वो। अच्छा नन, देखो नन यहाँ पर आ गया, हमने मैंने डाला नन यहाँ पर आ गया, नन डिफॉल्ट वैल्यू। तो नेविगेट ऐप, टाइटल, थीम्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी देखेंगे मोबाइल के ऊपर। ठीक है, सो कल का हमारा क्या पॉइंट रहेगा मेनली
इसको करते हैं बैक। आज तो हमने पूरा का पूरा एंड टू एंड देखा कि भाई कैसे हमारा कैटलॉग रिक्वेस्ट बनता है, कैसे RTM होता है, कैसे टास्क होता है। इसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए क्या कैटलॉग होता है, कैटलॉग के आगे मेरे कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरीज के आगे मेरे आइटम्स होती हैं। और अभी विल डिस्कस कि भाई जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे सिस्टम को कैसे पता चला कि मुझे बैकएंड में जाके इसको अप्रूवल लेके आना है, उसको कैसे पता चला कि भाई मुझे टास्क जनरेट करना है। दैट एवरीथिंग कम फ्रॉम द वर्क। ठीक है, सो कल हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। Okay. एनी अदर Okay. क्वेश्चन? अदुल, एक हेल्प चाहिए था। अभी आप जिस तरह से इतना अच्छा पढ़ा रहे हो हम लोगों को ये चीज, सो ऐसा कोई बेसिक डॉक्यूमेंट है क्या? अभी जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं ना PDF या, वो बहुत मतलब लेवल के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट है वो, तो ऐसा कोई बेसिक डॉक्यूमेंट है कि दिस विल टॉक फंक्शनली थिंग्स ऑफ सर्विस नाउ, ओनली फंक्शनल थिंग्स, ऐसा कुछ रहेगा तो शेयर करो, PDF या जो भी है वो। आई स्पीक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ना रितेश, हाँ, मुझे खुद ऐसा कभी कुछ नहीं मिला। अच्छा दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। क्योंकि व्हाट माय पॉइंट है इज दैट कि अभी जो मतलब जैसा सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल पार्ट। करेक्ट। एंड आई एम नॉट श्योर कि आपने कभी पहले किसी सर्विस नाउ ट्रेनिंग का पता किया है कि नहीं किया, बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसे फंक्शनल ट्रेनिंग भी देता होगा सर्विस नाउ के। टेक्निकल सब देता है, आई एग्री, पीपल नीड हाँ, टेक्निकल, बट करेक्ट। फंक्शनल कोई देता है कि नहीं देता, आई डोंट नो। नहीं, फंक्शनल कोई तो नहीं देता। ये सर अपना अपना ही इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, सब मिलजुल के जो हमने इकट्ठा किया हम बांट रहे हैं आगे। करेक्ट। So I can request one thing कि अगर आपको जैसे कोई चीज क्लियर होती है ना, बेटर हाँ नोट्स, एक हाँ हाँ। नोट्स लिख, मतलब मोटा मोटा नोट लिख दो भाई किसको कैसे करना होता है। क्योंकि जिस लेवल पे आप हैं उस पे अभी आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट आपको नहीं, बराबर है। फंक्शन मुझे कैसे। वही है, अभी मेरा एक और रीजन का सर्विस नाउ का काम चालू हो गया है, राइट राइट सो वो नवंबर तक गो लाइव हो जाएगा। सो राइट मुझे उसमें वही बात करना है, फंक्शनली ही चीजें ये करना है, बाकी तो वो टीम करेगा, टेक्निकल टीम जो भी है। एग्जैक्टली राइट। आर्किटेक्ट रहेगा, उसका डिजाइनिंग कैसा रहेगा, हाँ हाँ। बट वी शुड बी नो दिस पार्ट। ठीक है, और यही इसी बेस पे मैंने तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया था कि भाई मैं खुद टेक्निकल नहीं प्योर, जितना टेक्निकल आता है उतना टेक्निकल बताता जाता हूँ, मैं आपको फंडा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। चलिए रहना, आपका कोई क्वेश्चन या आंगन से कमरे में आ गई है, बस थक गई? नहीं नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो समझ में आ गया। और ओके, I'll just do the practical today, then I'll just ask tomorrow. ठीक है, सो Okay. लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।